अस्सलाम वालेकुम, खुश-आमदीद है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े ही अज़ीज़ मेहमान। मैं चाहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही कराएँ। आइए हम उनकी तरफ चलते हैं। Thank you so much, brother Harun, for inviting me on this platform. My name is Nixon Sebastian Anthony, or I've done my BSN back in 2012 from Shalamar Hospital. उसके बाद I have started my career as a clinical nurse. मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ चैरिटी, जो कि अब इस टाइम पे चिल्ड्रन रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के नाम से और मिसेस हशमत अफंदी के नाम से जो है वो शालामार हॉस्पिटल के अंदर रन हो रहा है वो डिपार्टमेंट। एंड देन आई स्टार्टेड इन 2014 एज अ क्लिनिकल नर्स इन शौकत खानम इन emergency department primarily. And that was like a tremendous area of my clinical practice because we were the pioneer uh, जिनके थ्रू जो है वो शौकत खानम हैज़ गेन्ड हिज standards of international accreditation, that is a JCI. And during that journey, I get the grace of the God of initiating my educational career in nursing, especially Masters of Sciences in Nursing from University of Health Sciences. And later on, I started my educational side, work in a government setup for a few years, I would say 2 or 3 years. And then I started my career in education, that is Saida Wahid College of Nursing से I started my educational career जहाँ पे teaching की, and then got an opportunity to work as an academic director in Doctors Hospital College of Nursing for more than 3 years. And now currently I'm working as an assistant dean academics, head of the department, and assistant professor in nursing at Noor International University. And that's all about my small journey. Thank you. जी, बड़ा अच्छा सफ़र था आपका निक्सन भाई। मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये नर्सिंग का सफ़र जो था, इसमें कभी मतलब लोगों की बातों से क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है नर्स करके नर्स एक फीमेल ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं हुए लोगों की बातों से या फिर कभी ऐसा सुन के आपको ऑकवर्ड लगा हो कि यार मैंने क्या चूज़ कर लिया? नहीं, that is a very interesting question. Thank you. Because इसमें I still remember when we were a student at that time in back in 2008 and 12. So there was a phenomena कि उन्हें हमें यही कहकर पुकारा जाता था क्लिनिकल साइड के ऊपर कि गर्ल्स जो होती हैं उन लोगों ने तो शलवार कमीज और वाइट पहने होते हैं कपड़े, सो व्हाट यू आर बी लाइक देयर. जी, So definitely it's a sort of a stigma, and I wouldn't say that I was not being stigmatized at that जी। time. From the last at that time for more than even 4 years in my education career, मैंने कभी अपने आप को psychologically accept नहीं किया that I was a nurse there. But I still remember in 2010 I first time attended a symposium in Pearl Continental Hospital, Pearl Continental by the Shaukat Khan Hospital, जी, and I first time met the international nurses, and that was like the mind-boggling area. Everything is being changed in my whole life, and I think of it that whatever we have studied it in our books, and we have seen it in our clinical side, that was totally changed because international nurses are not like that. So from that area, I purely admitted it that I need to pursue my career, and I stay in my career of nursing, and I will try my level best to serve my profession as much as I can. अच्छा निक्सन भाई मुझे पर्सनली आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक वेल एजुकेटेड नर्स के साथ बैठा हूँ। Thank you, Ji. तो Thank you. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एमएसएन करने का आप क्योंकि जब आपने ग्रेजुएट हुए आप, हम्म, तो उसके बाद इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जी तो एमएसएन का ख़्याल आपको कहाँ से आया या किसी ने आपको मोटिवेट किया या किसी ने गाइड किया आपको? हाँ जी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि शालामार में जब हम एज अ स्टूडेंट थे, सो हमारे साथ इंटरनेशनल नर्सेज बहुत ज़्यादा थे. सो वी बीन ट्रेन्ड बाय द फिलिपिनी नर्सेज, और आगा खान के कुछ मेल एंड फीमेल नर्सेज थे, एंड दे वर आवर इंस्ट्रक्टर एट दैट टाइम. सो उन लोगों ने हमें एट द वेरी पाइनियर एज ऑफ आर नर्सिंग, उन्होंने हमें एनक्लेक्स की बुक्स और उस परफॉर्मा के ऊपर पढ़ाना शुरू किया था. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें उसकी एबीसी का भी आइडिया नहीं था, एंड वी नेवर थिंक ऑफ इट कि कभी फ्यूचर में हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत भी पड़ेगी. बट यस, जो डीन थी हमारी, शी वॉज नॉट राइट नाउ इन द वर्ल्ड. जो डीन थी उस वक्त की नर्सिंग की, एंड दैट गिव्स अस अ मोटिवेशन कि वी नीड टू स्ट्राइव आवर लेवल बेस्ट टू टू द हाईएस्ट मार्क.
सो उसने हमारे ना सिर्फ स्टूडेंट लाइफ पर काम किया, बट शी आल्सो वर्क फॉर द फैकल्टी डेवलपमेंट. She started them to and encouraged them to get the admission in MSN. So by that time, we have realized that there wasn't be a first step to get, or even the final step to get the BSN. That is just a generic one. So वहाँ से motivation मिली, and then when I just move on in my clinical career, so I felt that कि there is a need कि हमें continue professional development के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. सिर्फ टीचिंग साइड पर नहीं, इट्स फॉर इवन क्लिनिकल साइड. That is, I would say कि a darkest area of the nursing profession, कि जब हमें सैलरी मिलना शुरू कर हो जाती है, हम अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम जी। करना छोड़ देते हैं. So we've been indulged in our family responsibilities and getting the salary and that's it. So इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा जाता. बट द प्राइमरीली कंसर्न दैट नीड टू बी, वो है कि हमें अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. एंड फॉर दैट रीजन, एंड दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप दैट क्रिएट मी टूवर्ड्स स्ट्राइविंग फॉर द गेटिंग द हायर एजुकेशन. सो वहाँ से मैंने इनिशिएट लिया था इसका. अच्छा निशान भाई, पहले की नर्सेज जो थी बिफोर पोस्टर एंड बिफोर जेनेरिक, क्योंकि जेनेरिक का रुझान तो बहुत देर बाद हुआ जब हमारा डिप्लोमा जो है वो बैंड हो गया. जी जी. तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको पोस्टर एन आने के बाद से कुछ चेंज नज़र आया? मैं अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक और चीज़ भी बताता चलूँ, क्योंकि पंजाब के अंदर BSN 2005 और 6 के बाद लॉन्च हुआ. जी, बट हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर BSN का ट्रेंड इतना नहीं था. जी, कराची के अंदर आगा खान हॉस्पिटल वाज द फर्स्ट वन हु हैव इनिशिएटेड द BSN प्रोग्राम, और वो 1980s की बात है. एट दैट टाइम दे हैव बीन क्रिएटिंग अ BSN नर्सेज. और लेकिन ये चूंकि नर्सिंग हमेशा वहाँ पर सरपास रही है टुवर्ड्स द, इफ यू आर कंपेयरिंग विद द अदर प्रोफेशन अदर प्रोविंसेस, तो पंजाब की निस्बत कराची बहुत सक्सेसफुल है नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. वो आज भी बहुत आगे है. तो वो स्टेप ने जो है ना इस चीज़ को बड़ा इनकरेज किया था. एंड दे आर दीज नर्सेज आर दैट बिलोंग्स टू द आगा खान, दे आर द पायनियर वन हु टेकन दैट स्टेप एज वेल, कि हमें पंजाब में और बाकी प्रोविंसेस में भी BSN इंस्टीट्यूशन जो है ना डेवलप करने की ज़रूरत है. डेफिनेटली देयर वुड बी अ हेल ऑफ डिफरेंस. जो हमारी जनरल नर्सेज होती हैं उनको मेडिकल पढ़ाया जो जाता है वो बड़ी काफ़ी बेसिक एजुकेशन कराई जी, जाती है, विच इज़ आई वुड से, अगर हम कंपेयर करें जेनेरिक के साथ तो उनकी इतनी इन डेप्थ स्टडी नहीं होती है. बट जो पोस्ट आर अब उन्होंने लॉन्च किया है, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट एंड एक्सलेंट स्टेप, क्योंकि उसकी वजह से ये हुआ है कि एक सॉर्ट ऑफ एक कियोस्क क्रिएट होना शुरू हो गया था नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर. और वो कियोस्क ऐसा था कि जो जेनेरिक नर्सेज आते थे उनका एक डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया था. और उसकी वजह से क्लिनिकल जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि उनको गेन करनी थी विद द हेल्प ऑफ पोस्ट आर नर्सेज और जनरल नर्सेज, उनका इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट था. बिकॉज वो फील ये करती थी कि दैट दे आर मोर सुपीरियर एंड दे फीलिंग देमसेल्व्स एज अ सुपीरियर वन, whereas they've been lagged a major area that is a clinical practice. So वो कॉन्फ्लिक्ट ने हमारे प्रोफेशन को ग्रो करने में एक हिंड्रेंस क्रिएट की. अलॉन्ग विद दैट जो हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पे जेनेरिक नर्सेज को एक काफ़ी फैंटेसाइज्ड एरियाज में पढ़ाया जा रहा था कि यू बिकम लाइक नर्सिंग ऑफिसर और आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफिस मिलेगा एंड यू विल गेट द पर्क्स एंड ऑल एंड दैट. सो उनको इस चीज़ का एक आइडिया होना शुरू हो गया कि हमें एक बड़ा ही अच्छी जो है ना व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी. आई वुडंट से कि दिस इज नॉट अ व्हाइट कॉलर जॉब, बट वो फैंटेसी ने प्रोफेशन को जो है ना वो एक कियोस्क क्रिएट किया. वो कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए पोस्ट आरएन जब आए तो वो पोस्ट आरएन को इक्विप किया गया एजुकेशनल साइड के ऊपर. उनको रिसर्च पढ़ाई गई, उनको एडवांस हेल्थ केयर पढ़ाया गया, उनको क्रिटिकल केयर पढ़ाया गया. और इसकी वजह से उन वो लोग भी जो एक सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थे वो अपलिफ्ट हो गया उनका. जी, उसकी वजह से अब ये है कि आप हर एक पोस्ट आर नर्स को इस तरह की फीलिंग नहीं आएगी कि वो किसी ना किसी लिहाज से इंफीरियर है. जी, सो वेन एवर शी कम अक्रॉस विद जेनेरिक नर्स, so she always feel like good enough जी, that they both are the equivalent one. जी, जी, So that is a very good effort और जी, इसको recognize भी किया गया. And you can see right now जी, there are a lot of nurses who have been moving towards Saudi Arabia and जी, so जी, जी, even towards Dubai, and the Kuwait would be the best area जहाँ पर लोग जी. जा रहे हैं. So they all are those nurses जो यहाँ पर किसी टाइम पे एक डिप्लोमा नर्स थे and right now they've been serving at an international platform. So that is a very good thing.
अच्छा निक्सन भाई आपने बेड साइड पे भी काम किया है और अब आप टीचिंग साइड पे हैं। जी। तो बेस्ट कौन-सा था आपका? बेस्ट आई वुडंट से दैट वन इज़ अ सुपीरियर वन फ्रॉम अनदर वन। जी। हर एक एरिया के अपने एक अच्छी मेमोरीज़ भी हैं जी, जी। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है ना वो भी डिफरेंस है। अम, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं हाइलाइट करूँगा एक और डार्केस्ट एरिया ऑफ आवर प्रोफेशन एंड दैट इज़ कि हमारे यहाँ पर हायरार्की नहीं है प्रॉपर्ली जी। डिफाइंड। If you wanted to serve in education side, so you need to quit the clinical side and then you need to serve there. But whereas in the European countries, you cannot be quit your clinical side, even though you've been teaching there. Apart from those areas, अगर आप purely एक researcher के तौर पे काम कर रहे हैं, even the researchers also have a collaboration with the clinical individuals. तो nurse practitioner का पाकिस्तान के अंदर इससे पहले रोल नहीं है। जी। Still, even जो 2073 का एक्ट था पीएनसी का is being revised in 23. सो जो 23 का एक्ट आया है पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का, उसमें नर्स प्रैक्टिशनर को बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट में एलीट्स बैठे हुए हैं जो मेडिकल के माफिया आई वुड से, वो इसको इनकरेज नहीं कर रहे कि नर्स प्रैक्टिशनर्स जो है वो पाकिस्तान में होने चाहिए। वो हाईलाइट कर रहे हैं एक डार्केस्ट एरिया कि नर्सेज आर नॉट कैपेबल इनफ टू प्रिस्क्राइब द ड्रग, to assess the patient, to finalize the things. But here, a very alarming thing is that, and very questionable one, and that is कि अगर इससे पहले कि हम ये समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं है, तो अभी की जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में नर्सेज काम कर रही हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें? Because they are the one, those who have spending 24 hours with the patients, and they are the one who also work as an alarming one. कि डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है just to go to see the patient because the patient is not good enough. So if we give them a liberty to work there, so definitely वो आपके प्रोफेशन को ना सिर्फ अपलिफ्ट करेंगी बल्कि इसको एक अगली स्टेज के ऊपर भी लेकर जाएंगी। जी। So this is a very major area that need a work on. अच्छा निक्सन भाई आपने आइल्स जो किया, जी जी। उसका इरादा कैसे किया और मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आइल्स का? Here I need to mention an institution in Lahore that is a future learning center. I went towards that institution and मैं आपको बताता चलूँ that is one of the one of the testimony I would say in my life because मेरा इरादा नहीं था कि मैं IELTS अटेम्प्ट करता, बट IELTS अटेम्प्ट करने का एक फियर था मेरे माइंड में भी कि मैं शायद उसको उस तरीके से ना कर पाऊँ। जी, जी। But that institution and their instructors are excellent. They always guide me, they suggest me the best material and they give them an excellent area where I need to work on. तो मुझे वहाँ से ये एक हेल्प भी मिली that I need to uplift my linguistic skills. तो ये भी हमारी आज की जो नर्सिंग प्रोफेशनल है उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सो दैट यू कैन बी communicate with the international people and to show the individuals that you are capable enough to work on. जी। So मेरे एजुकेशन साइड को इसने एक सपोर्ट भी दिया और इसने मुझे अपलिफ्ट भी किया और मुझे कॉन्फिडेंट भी बनाया। अच्छा निक्सन भाई बड़ा अच्छा रहा आपके साथ बात करके। आज पर्सनली मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ मिला हूँ, तो मैं खुश भी हूँ कि हमारे प्रोफ़ेशन में इस कदर इंटेलिजेंट और वेल एजुकेटेड लोग हैं। और मैं चाहता हूँ हमारे जो न्यू जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी बीएसएन जॉइन किया या फिर जो आने का इरादा रखते हैं, उनके लिए एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा? थैंक यू सो मच ब्रदर। मेरा पर्सनली जो उनको मैसेज है वो ये है कि क्लिनिकल साइड से ये सोच कर ना भागे कि um, वो जो है ना बड़ा हैक्टिक एरिया है। इफ आई वुड से कि मैं अगर आज इस प्रोफेशन में इस स्टेज पर पहुंचा हूँ दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय क्लिनिकल एरियाज जिसने मुझे अपलिफ्ट किया। आपकी थ्योरी में भी शायद 1 साल या 2 साल तक आपको मेमोराइज हो जाएगी एंड आफ्टर दैट इट मैनेज्ड, बट द ओनली थिंग दैट स्टेज देयर इज द एक्सपीरियंस दैट यू हैव स्पेंट जी। देयर। सो आपकी थ्योरी को सपोर्ट करना, उसको आपके रिफ्लेक्सेस का पार्ट बना देना और उसको आपकी लाइफ का एक मेजर एरिया डेवलप कर देना इज बिकॉज ऑफ द क्लिनिकल एरिया। तो अपने क्लिनिकल एरिया में मैक्सिमम काम करें, not just because of getting the salary and to I would say work for the patients,
बट इट गिव्स यू एन इंटरनल बेनिफिट, दैट इज इंटरनल इंसाइट आपकी स्ट्रांग होती है, बिकॉज वहाँ पर जो आपको पेशेंट को आप हेल्प करते हैं, तो वो जो आपको रिस्पॉन्स देते हैं उसके रिजल्ट में, जी, जी। दैट इज दैट इज नेवर बीइंग अचीव्ड एट एनी कॉस्ट। ना किसी पैसे से, ना किसी और जी। चीज़ से, ना स्टेटस से आपको मिल सकता है। सो आई स्टिल रिमेंबर, अगर मैंने 5.5-6 साल शौकत खाने में स्पेंड किया है, सो आई वर्क फॉर दोज पेशेंट्स जिनको कोई और डील नहीं करता, जिनको लोग, उनके अपने फैमिली मेंबर्स भी शायद हाथ लगाने से डरते हैं बिकॉज ऑफ देयर फंगेटिंग वुंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा स्मेल क्रिएट करते हैं। जी। और हो सकता है कि उनके बार बार के डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से पूछे जाने वाले सवाल से फैमिली परेशान हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जब आप स्टैंड लेते हैं, तो देर वॉज एक्चुअली द टाइम जब वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, और जो वो ब्लेसिंग्स आपके लिए डिक्लेयर करते हैं, दैट स्टेज इन योर लाइफ। सो दैट वुड बी द बेस्ट एंड एक्सेलेंट वर्क जो कि इसके ऊपर काम करने की हमें ज़रूरत है। इसलिए मैं, द ओनली मैसेज नीड टू बी कि क्लिनिकल साइड पर ज़रूर काम करें और उसको छोड़िएगा नहीं। Yes, if you wanted to pursue your career as an educationist, as a researcher, definitely do it. But as much as you can, spend more time in clinical area. Thank you. थैंक यू निक्सन भाई, आपने बिज़ी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।